Hi friends, good morning. Welcome to my Ra. Now Ra is a Hindi term meaning path, and we will guide you towards your path to success. Now this word Myra is very special to me. It's actually a name of my daughter. So rest assured, under this banner you'll be getting the best quality. Now you all are in most important level of CA, intermediate. Now why do I say intermediate is the most important? 3 reasons. Number 1, you have 8 big subjects, and to cover up that 8 subjects, 9 to 10 months of time. Final में again 8 subjects, but final में 2.5-3 years. तो intermediate में to cover this 8 subjects in this 9-10 months, वो problematic है. I don't say difficult, but हाँ पक्का lengthy. So make sure you are having your proper attention from day one. Don't take it lightly. Foundation you might have cracked by studying 1 month, but ये नहीं होगा पक्के से. Second reason, many of the subjects जो हम पढ़ रहे हैं, they are new for us. Like costing first time, FM first time, taxation first time, हमारा auditing first time. This all is creating a base for you. Same subjects फिर से final में they are going to come. अगर base weak है, पक्का you will have problem. And third, many students, if they are not able to crack intermediate, वो CA छोड़ देते हैं. But I have not seen anyone leaving CA final में आके. तो ये level crack नहीं होगा. It is possible you may quit the course. But अगर ये level is cleared, 100% आप CA बनोगे. तो don't take this level lightly. Make sure you're putting efforts right from day one. Sir, मेरे mind में भी आया था. After I cleared my foundation या BCom खत्म करके जब मैंने start किया intermediate, it was there in my mind. ये चीज़ easy नहीं है. I will not take it lightly. Daily revision करूँगा. हाँ, whatever things have came in your mind, just make sure आप वो करो. That's it. Okay, about me. I'm Niket. I cleared my chartered accountancy in November 2008. That's almost 12 years. And since then, I'm teaching all you lovely students. Now, I did my articleship at Deloitte's. So it was a very good experience during that 3 years. बड़े corporate सब जगह काम किया. About my teaching career, I teach 2 subjects, accounts and auditing. So intermediate में there is accounting, advanced accounting and auditing. Final level पे FR, financial reporting and your auditing. Now I started at Ahmedabad, and 2011 I started going as visiting faculty to Bangalore, Hyderabad. 2014 I shifted to Bangalore. I'm associated with Yashash Academy over there, one of the best coaching institute for Southern India. And वहाँ पे E10 के साथ भी हमारा tie up था. E10 was a online coaching organization जो center model पे work करता था. People will be sitting all across India in various centers of E10. हमारे lectures will be going live over there. But हाँ problem, आप लोगों को अब center पे जाना अच्छा नहीं लग रहा है. घर पे बैठ के पेन ड्राइव देखो, हाँ that's more feasible. उसके advantages भी है, disadvantages भी है, आते उसके ऊपर. तो E10 was shut down after 3-4 years, and now I'm back with Myra आपके लिए online coaching. Now, coming to pen drive के advantages and disadvantages. See, most important advantage of pen drive is आपका traveling time बचेगा. You don't have to go to coaching institute, you don't have to come back, but make sure वो जो traveling time बचा, you use it to the best extent. उसको waste मत करना. Another advantage, आप flexibility है. You can study at your own timings. सुबह जल्दी पढ़ना है, जल्दी पढ़ो. शाम को पढ़ना है, शाम को पढ़ो. It's fine. But I tell you, इसके साथ एक problem भी है. जब flexibility आती है ना, we tend to take it lethargically. Lethargically मत लेना. I want कि भाई आप लोग एक फिक्स टाइम टेबल बना दो कि डेली मॉर्निंग के 4 आवर्स मेरे कोचिंग के है या डेली इवनिंग के 4 आवर्स मेरे कोचिंग पे, वॉट एवर डिपेंडिंग ऑन योर कॉलेज, बट स्टिक टू इट. ऐसा नहीं होना चाहिए आज फ्री हूँ, आज मतलब मज़ा आ रहा है, चलो 8 घंटा देख लिया, आज मज़ा नहीं आ रहा है 2 घंटे में शट डाउन. नहीं, एंश्योर यू हैव अ प्रॉपर टाइमिंग वेन एवर यू आर सीइंग इट. प्लस हमारे लेक्चर्स जब भी आप देख रहे हो, आई डोंट वॉन्ट कि आप ट्रैवलिंग करते टाइम बस में बैठ के देख रहे हो या फिर घर में सोफे में लेटे लेटे हुए देख रहे हो. नहीं, यू नीड टू हैव प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन. हैव अ पेन पेंसिल इन योर हैंड, कीप ऑन मार्किंग द थिंग्स. हमारे सब्जेक्ट में यू डोंट नीड अ नोटबुक. आई डोंट प्रेफर अ नोटबुक. हाँ, हमारा मटीरियल इज सेल्फ सफिशिएंट and उसके अंदर majority of the important things are highlighted in bold. Just make sure you have a pen pencil whenever you are studying and you mark the proper things. मैं भी mark करूँगा अपने material में.
तो नाउ द पॉइंट इज, जो मार्क किया है दैट थिंग हैज टू बी रिवाइज्ड. यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एनी काइंड ऑफ समरी और समथिंग. अगर हैबिट है 12th में भी बनाई थी, बनाओ, आई डोंट से नो, बट मेक श्योर बुक्स में प्रॉपर मार्क करो. वो चीज एटलीस्ट 2 times बिफोर एग्जामिनेशन यू रिवाइज्ड इट, एंड एग्जामिनेशन डे इज द 3rd time जब आप रिविजन कर रहे हो, एंड देन रेस्ट एश्योर्ड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. नाउ कमिंग टू अवर सब्जेक्ट. नाउ सब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, ये सब्जेक्ट एंड SMIT, दिस आर द 2 subjects पीपल फेल मोस्ट. सर क्यों? क्या ये 2 सब्जेक्ट डिफिकल्ट है? नहीं. तो सर प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम, वी डोंट गिव जस्टिस टू द सब्जेक्ट. जितना एफर्ट्स मैं अकाउंट्स के लिए डालता हूं, जितना एफर्ट्स मैं कॉस्टिंग के लिए डालता हूं, जितना एफर्ट्स मैं टैक्स के लिए डालता हूं, आई एम नॉट पुटिंग दैट एफर्ट्स फॉर ऑडिटिंग या SMIT. हाँ, टैक्स के लिए, अकाउंट्स के लिए क्लासरूम में भी बहुत ज्यादा आवर्स गए, घर पे भी आई एम डूइंग मोर, बट हाँ ऑडिट करने की बारी है, सर बोर हो रहा हूं. क्या यू आर नॉट कमिंग हियर फॉर बोर्ड या एंटरटेनमेंट के लिए नहीं आ रहे हो यार? जस्ट एंश्योर, इमेजिन अकाउंट्स में आ गए 70-80 मार्क्स, ऑडिट में 38, SMIT में 35, चलेगा? नहीं. वी नीड टू गिव इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट्स. सी स्पेशलाइजेशन करना है वो बाद में, करंटली यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट्स. इट्स नॉट प्रैक्टिकल अच्छे लग रहे हैं, मेहनत कर रहा हूं, थियरी बोर हो रहा हूं, मजा नहीं आ रहा है. नहीं, यू नीड टू कीप योर सेल्फ इन्वॉल्व. जितना आप इन्वॉल्व रहेंगे डेफिनेटली मजा आएगा. एंड डोंट जस्ट डू दिस सब्जेक्ट टू पास. दिस सब्जेक्ट कैन फेच यू वेरी वेरी गुड मार्क्स. एग्जेम्पशन हैज टू बी मिनिमम 60 आने चाहिए. अबव 70, अबव 80 भी ऑडिट में आते हैं यार. आई माई सेल्फ गॉट अबव 80. You need to understand the proper words and the lines which you need to write in your answer. पूरा आंसर they don't want as it is. सर क्या डिट्टो ऐसे ही लिखना होता है? नहीं. They want some lines, some words as it is. The problem with us is हम ऐसे words use करते हैं जिससे पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाए. एग्जाम्पल देता हूं. Now there was a question asked once. What are the uses of securities premium? Now मालूम है सेक्शन 52 के अंदर uses of securities premium are given. One of the use, it can be used to write off. It can be used to write off premium on redemption of preference shares and debenture. One of the use. Now बच्चे ने लिखा था, I got the evaluated answer sheet of the student and he had written it can be used to pay premium on redemption of preference shares and debentures. Now word pay गलत है. The word has to be write off. पेमेंट कभी सिक्योरिटीज प्रीमियम से नहीं होता है. पेमेंट इज ऑलवेज आउट ऑफ कैश. नाउ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज अ बुकिश टर्म. रिजर्व्स, कैपिटल, ये सब बुकिश टर्म है. दे आर अ रिफ्लेक्शन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. कैपिटल प्लस रिजर्व इज नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज. हम लोग डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं. इमेजिन, ओनर स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग कैपिटल 1 lakh. Owner started business by bringing capital 1 lakh. मुझे बताओ, journal entry, cash account debit to capital account. Okay. Now balance sheet बनाओ. Liability side में capital 1 lakh, asset side में cash 1 lakh. Now don't tell ये capital owner को belong करता है, ये cash भी owner को belong करता है. तो ऐसा मत बोलो ये 1 lakh plus 1 lakh 2 lakh हमें owner को देना है. नहीं. This capital is nothing but a reflection of asset जो opposite side पे है. We follow double entry system. आपने गुड्स परचेज किया 1 lakh पे, you sold for 110. गुड्स खरीदा 1 lakh पे, you sold for 110. There is a profit of 10,000. In your balance sheet, liability side under reserves and surplus, profit P&L balance 10,000. सामने कैश होगा. कैश गया 1 lakh, came in 110. ओके सर, कैश में नहीं बेचा तो डेटर होगा. There is something on opposite side. एनी कैपिटल या रिजर्व वर्ड है वो रिफ्लेक्शन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज है. देयर विल बी समथिंग ऑन ऑपोजिट साइड. क्या? वी डोंट नो. इमेजिन वो प्रॉफिट वाज रियलाइज्ड इन कैश. तो सामने कैश है, कैश से गुड्स खरीदा, स्टॉक बन गया, स्टॉक बेचा क्रेडिट पे, डेटर बन गया. फिर से कलेक्शन आया, कैश बन गया. उससे फिक्स्ड एसेट खरीदा, फिक्स्ड एसेट बन गया. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. बट नाउ जस्ट इमेजिन, आपने वर्ड लिखा इट कैन बी यूज्ड टू पे. पेमेंट इज ऑलवेज आउट ऑफ कैश. जर्नल एंट्री भी देखो. जर्नल एंट्री, ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 lakh, रिडीम किया 110 पे. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 lakh, वी रिडीम दैट 110. एंट्री.
तो एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, वो क्रेडिट बैलेंस था, इट गोज अवे, इट इज डेबिटेड टू बैंक 110 होगा। एक्स्ट्रा 10 कहाँ डेबिट करते हैं? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वो हमारा लॉस है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज अवर लॉस, जिसको हम राइट ऑफ करेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम के सामने। उसको पीएनएल में नत ले जाओ, यू कैन राइट ऑफ अगेन सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड क्या वर्ड्स यूज कर रहे हो। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट में वी आर नॉट ओनली लर्निंग सब्जेक्ट्स, वी आर ऑल्सो लर्निंग हाउ टू इंटरप्रीट द डिफरेंट वर्ड्स। अगर वर्ड्स इंटरप्रीट करना सीख गए, रेस्ट एश्योर्ड नोबडी कैन स्टॉप यू इन गेटिंग गुड मार्क्स इन थियरी। तो आज जो हमारा पहला सेशन है इंट्रोडक्शन, विल नॉट स्टार्ट विथ एनी ऑफ द टॉपिक, जस्ट समझेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड ऑडिटिंग, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिटिंग, टाइप्स ऑफ ऑडिट, एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट। सी कोई भी सब्जेक्ट स्टार्ट करो, यू शुड नो व्हाई द सब्जेक्ट इज, वो सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, क्यों ये सब्जेक्ट है। तो टुडे जस्ट वन थिंग, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, objectives of auditing, types of auditing, advantages of auditing. Now पहले ही मैंने बोला you don't need a notebook, but you need a pen or a pencil. You should keep it in your hand, constantly keep on marking. मैं जो mark कर रहा हूँ, make sure you also mark it, and that is really going to help you. Exam के time, next time revision में वो उतना पढ़ोगे, that will give you a crux of everything. हमारा book is self-sufficient. 380 पेजेस का बुक है। इमेजिन हाफ ऑफ द थिंग्स आर अंडरलाइन। इतना भी कम अंडरलाइन मत करोगे, यू कांट अंडरस्टैंड फुल मीनिंग। हाफ ऑफ द बुक, तो 180 पेजेस काइंड ऑफ अंडरलाइंड है। वो 180 पेजेस आपको 2 बार रिवाइज करने हैं, फिर 1 मोर टाइम एग्जामिनेशन के टाइम। ओके, लेट अस स्टार्ट। कम टू पेज नंबर 1.1। फर्स्ट चैप्टर में 1.1 मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग, वो सब है वहां पे। तो कम टू पेज नंबर 1.1. Okay, so we start with the word meaning of auditing. Now अगर आप देखोगे ना, they've written as per SA 200. SA is standards on auditing. SA is standards on auditing. जैसे आपके accounting standards होते हैं, वैसे ही we have auditing standards. डिटेल में हम लोग करेंगे, आपके सिलेबस में है, यू हैव इट इन योर सिलेबस, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड डिटेल में देखेंगे। तो ये डेफिनेशन कहाँ पे है, ये डेफिनेशन कहाँ पे है, SA 200 के अंदर। तो एज पर SA 200 उसका नाम है ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर, कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विथ SA। ये उसका नेम है SA 200 का। ऑडिट क्या है? ऑडिट इज, जब भी मैं पूछता हूँ बच्चों को व्हाट इज ऑडिटिंग, सर चेकिंग। ओके, किसका चेकिंग? सर फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ओके, इट इज a checking of financial statement. Now all checkings are not audit. All checkings are not audit. Purpose क्या है checking का? Purpose क्या है checking का? Imagine financial statements बने या ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ, तो अकाउंटेंट भी चेक करेगा यार कहाँ पे गलती है। तो अकाउंटेंट इज ऑल्सो चेकिंग वेयर इज द मिस्टेक, बट वो चेक कर रहा है टू फाइंड वेयर इज द मिस्टेक। we check to give a opinion whether the financial statement shows a true and fair view. तो हमारा पर्पस है चेकिंग का टू एक्सप्रेस अ ओपिनियन। तो ऑडिट इज नॉट जस्ट चेकिंग, चेकिंग के साथ यू हैव टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। नाउ लेट अस सी द डेफिनेशन। ऑडिट इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। ये वर्ड इंडिपेंडेंट आता हूं, आई विल कम टू दैट वर्ड। इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? Of what? Financial information. This is of what? Okay, of whom? So it is a independent examination of what? So this is your financial information of whom? Any entity. Any entity, whether profit oriented or not, irrespective of its size or legal form. Any entity. सर ऑडिट एनी एंटिटी का होता है या इनकम टैक्स एक्ट आपने ऑलरेडी किया है? सम थिंग्स यू वुड हैव स्टार्टेड। अगर योर टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़, अगर योर टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़, प्रिजम्पटिव में 2 करोड़ है, तो इफ योर टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़ देन you are required to get the books audited, and it can be individual, it can be sole proprietorship, it can be company, AOP, BOI, कोई भी, any SSC
हैविंग अ टर्नओवर एक्सीडिंग 1 crore या प्रोफेशनल है तो receipts exceeding 50 lakh, you need to get the books audited. So it is of any entity, whether profit oriented or not, even trust. Trust का भी audit होता है. सुना है trust are exempted from income tax? Have you heard? Trust are exempted from income tax. Yes, trust are exempted. But to get a exemption from income tax, one of the condition is उनके books mandatorily audit होने चाहिए. उनके बुक्स मैंडेटरीली ऑडिट होने चाहिए. तो ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, इवन ट्रस्ट का भी ऑडिट होता है. इवन ट्रस्ट का भी ऑडिट होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ साइज. नाउ सर अभी तो आपने बोला 1 crore टर्नओवर होना चाहिए. दैट इज एज पर इनकम टैक्स एक्ट. अगर मैं कंपनीज एक्ट में जाऊं, all companies are mandatorily required to get the books audited. अगर मैं Companies Act में जाऊं तो all companies are mandatorily required to get the books audited. तो now imagine all company turnover 1 रुपया, 100 रुपए, 1 crore, 2 crore, doesn't matter, irrespective of size, छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, all have to get the books audited. और legal form, you may be sole proprietor, partnership, AOP, BOI, कुछ भी, you need a mandatory audit. And purpose क्या है? The purpose is when that examination is conducted with a view to express opinion thereon. So this is of the financial information of any entity when it is conducted with a view to express opinion thereon. Okay, so mark this definition of audit as important. आज एक्चुअली कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट, टाइप्स ऑफ ऑडिट, एडवांटेज, मीनिंग इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट. तो इट्स एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ होम, एनी एंटिटी. ओके, ऑफ व्हाट? financial information. Of whom? Any entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or its legal structure. And when such an examination is conducted with a view to express opinion thereon. Purpose is to give a opinion. Now word आता है independent. अब जाते हैं word independent. Now imagine I am an auditor of my father's business. Suppose, practically allowed नहीं है, but suppose I am an auditor of my father's business. Now my father ने to avoid tax कोई fake expense डाले. रियलिटी में उनके पास 5 एम्प्लॉय है, वो बुक्स में दिखाते हैं 10 एम्प्लॉय है. रियलिटी में 5 एम्प्लॉय है, बुक्स में दिखाते हैं 10 एम्प्लॉय. एंट्री करनी है ना, सैलरी टू कैश. तो 5 की जगह 10 एम्प्लॉय की एंट्री करते हैं, सैलरी टू कैश, सैलरी टू कैश. जब आप करोगे सैलरी टू कैश, बुक्स में से कैश आउट, बुक्स में से कैश गया, रियलिटी में कैश आप ही के पास है. रियलिटी में कैश आप ही के पास है. दिस इज नथिंग बट योर बेसिकली व्हाइट मनी इज कन्वर्टेड इनटू ब्लैक मनी. पहले बुक में था, बुक में से आउट, बट रियलिटी में है वो अनरिकॉर्डेड कैश आपका. दैट्स काइंड ऑफ अनरिकॉर्डेड कैश. व्हाइट मनी कन्वर्टेड इनटू ब्लैक बन गया वो. क्यों? अब खर्चा ज्यादा आएगा. तो उनका प्रॉफिट नॉर्मली 10 लाख आ रहा था, नॉर्मली उनका प्रॉफिट 10 लाख आ रहा था, बट 5 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय फेक, मंथली 10,000 सैलरी, 5 एक्स्ट्रा एम्प्लॉय मंथली 10,000 सैलरी, तो मंथली 50,000 का सैलरी फेक, ईयरली 6 लाख का सैलरी फेक. तो प्रॉफिट 10 लाख आ रहा था, 6 लाख का फेक एक्सपेंस डाला, अब प्रॉफिट हो गया 4 लाख. तो पहले 10 लाख के ऊपर टैक्स भरना था, अब सिर्फ 4 लाख के ऊपर टैक्स भरना है. तो इमेजिन इफ आई एम ऑडिटर ऑफ माई फादर्स बिजनेस, मुझे मालूम है पापा के पास 5 एम्प्लॉय है, बुक्स में दिखा है 10 एम्प्लॉय. वुड आई राइट इन माई रिपोर्ट माई पापा इज डूइंग फ्रॉड्स, माई पापा गलत कर रहे हैं, उनको जेल में ले जाओ? नहीं यार, मेरे पापा है, आई कांट डू इट. तो यू कांट वर्क इंडिपेंडेंटली. इफ वहां पे आपका रिलेटिव इन्वॉल्व है या समथिंग, तो इट हैज टू बी अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. तो ऑडिटर हैज टू बी अ इंडिपेंडेंट पर्सन. तो आई कैन नॉट बी ऑडिटर ऑफ माई फादर्स बिजनेस. नाउ सर, क्या मैं अपने भैया के बिजनेस का ऑडिटर, क्या मैं अपने चाचा के बिजनेस का ऑडिटर बन सकता हूं? विल लर्न लेटर, वो सब बाद में आएगा. हाँ, कंपनीज एक्ट वाला ऑडिट है, डिफरेंट रूल्स है. इनकम टैक्स एक्ट वाला ऑडिट है, डिफरेंट रूल्स है. क्वालिफिकेशंस, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ ऑडिटर, हु कैन बी ऑडिटर, हु कैन नॉट बी ऑडिटर, वो एक्ट्स में दे रखा है. तो एज ऑफ नाउ ऑडिट शुड बी डन बाय अ इंडिपेंडेंट पर्सन. इट्स अ इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. अगर इंडिपेंडेंट बंदा करेगा तो ही जेन्युइन ओपिनियन आएगा.
It's an independent examination of what? Financial information. Of whom? Any entity, whether profit oriented or not, irrespective of size or legal form. And when such an examination is conducted with a view to express opinion thereon. अब जाता हूं objectives of audit. Okay, क्या है objective? What do you think? What do you think? जब भी पूछता हूं बच्चों को, mostly they say, sir, objective is to find frauds. Objective is to find out the errors. So whether objective of audit is to find out the frauds and errors? Okay, एक और क्वेश्चन पूछता हूं, फिर आते हैं इसके ऊपर. Now, after audit, is there a 100% guarantee कि इस यहाँ पे कोई fraud error नहीं होगा? Audit हो गया तो is there a 100% guarantee कोई भी fraud error नहीं होगा? After the audit is done, is it a 100% guarantee there won't be any frauds or errors? तो क्या हम 100% guarantee देते हैं? नहीं. Auditor never gives a absolute assurance. We give a reasonable assurance. हम absolute assurance नहीं देते, reasonable. Reasonable assurance is a high level of assurance but not absolute. Reasonable माने high level of assurance but not absolute. Now reasonable assurance देना है. Assurance माने मैं आपको satisfaction देता हूं, ये बराबर है. That's an assurance. Auditor का report is a assurance to the people. हाँ, this is fine. But I don't give absolute assurance. I give reasonable assurance. So auditor is not responsible to find out all frauds and errors. नहीं. We are not responsible to find all fraud and error. हाँ, we have to perform our work properly. Carefully designed fraud. Carefully designed fraud है, auditor may not be able to find. Fake evidences बना दिए, looks like genuine. यार fake marksheet बन जाती है, उसके बेस पे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है. फेक 2000 रुपए की नोट आप ले लेते हो, आपको पता भी नहीं चलता फेक है. आपने 2-4 जगह पास ऑन भी कर दी, फिर बैंक में गया, पता चला ये फेक है. तो इट इज नॉट पॉसिबल एवरी टाइम. ऑडिटर मे नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द फ्रॉड और एरर, बट ऑडिटर शुड हैव वर्कड विथ रीजनेबल केयर एंड स्किल. आपको रीजनेबल केयर एंड स्किल के साथ काम करना है. यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू फाइंड ऑल फ्रॉड्स एंड एरर्स. आपका ऑब्जेक्टिव इज नेवर टू फाइंड फ्रॉड. You don't give absolute assurance, you give reasonable assurance. Now, अगर मुझे reasonable assurance देना है, if I want to give a reasonable assurance कि भाई ये financials बराबर है, तो I need to first obtain a reasonable assurance. अगर मुझे reasonable assurance देना है, तो देने के लिए first मुझे reasonable assurance चाहिए, not absolute, reasonable कि हाँ यहाँ बराबर है. It is free from material misstatement whether due to fraud and error. I'm not telling all frauds and errors. तो हाँ, reasonably बराबर है. तो my objective is first I have to check things. I have to obtain a reasonable assurance. Then I have to give my report. Objective is never to find frauds. Objective is to obtain a reasonable assurance and then give your report. Again, ये भी essay 200 में हम लोग करेंगे. essay 200 in detail. We'll do essay 200 in detail. अभी just what are the objectives of audit? 1. To obtain a reasonable assurance about whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. Whether the financial statement as a whole are free from material misstatement. Now see, auditing में language बहुत technical है. It's not a general language like SM. तो make sure आप mug up मत करो, आप समझो ये language. Once you understand it, कोई problem नहीं आएगा. To obtain a reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement. Now, अगर immaterial misstatements है चलेगा. Misstatements can be due to fraud or error. Misstatements can be due to frauds or errors. Misstatement can be due to fraud or error. And immaterial misstatement है चलेगा. For example, कंपनी ने सेल किया 990.20, 990 रुपीज एंड 20 पैसा, 990 रुपीज 20 पैसा, बट बुक्स में सेल्स रिकॉर्ड है सिर्फ 990. वो सर 20 पैसा रिकॉर्ड नहीं किया. चलेगा यार, दैट्स इमटेरियल. Material is something which influences the decisions of users of financial statement. अगर decisions of users of financial statement influence होगा तो वो material है.
ऑडिटर इज कंसर्न विथ मटीरियल मिसस्टेटमेंट, इमटीरियल प्रॉब्लम्स है वो ओमिशन ऑफ पैसा, चलेगा, फाइन. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल are free from material misstatement. And second objective, you give a report. You report on financial statement and communicate as required by SA your findings. You report on financial statement and communicate as required by SA. क्या हमारे findings? Communicate as required by SA हमारे findings. तो see, I'm not just underlining very few things. मगर मुझे लगे पूरा सेंटेंस इंपॉर्टेंट है, आई अंडरलाइन फुल सेंटेंस. अगर मुझे लगे यहां पे सिर्फ वर्ड से मुझे पता चल जाएगा, आई अंडरलाइन ओनली वर्ड्स. अंडरलाइन दैट मच के उतना रिवाइज करूं, आई एम एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग आउट ऑफ इट. इट गिव्स अ क्रक्स ऑफ एवरीथिंग. तो ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट ऑल फ्रॉड्स एंड एरर्स. एंड ऑडिट करने के बाद वी कैन नॉट से देयर विल नेवर बी एनी फ्रॉड एंड एरर. हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं देते हैं, वी गिव अ रीजनेबल एश्योरेंस. अब रीजनेबल एश्योरेंस देने के लिए आई हैव टू फर्स्ट ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस. कैसे ऑब्टेन करूंगा? बाय चेकिंग. तो वी ऑब्टेन अ रीजनेबल एश्योरेंस हाउ? इट इज बाय चेकिंग. चेक करके मैं रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करूंगा दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटीरियल मिसस्टेटमेंट. एंड देन आई विल रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ओके, स्कोप ऑफ ऑडिट बाद में आएंगे. आज जस्ट इंट्रो देख रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्टिव्स, फिर टाइप्स ऑफ ऑडिट एंड एडवांटेजेस. स्कोप आई विल कम लेटर. स्कोप के बाद एस्पेक्ट्स टू बी कवर्ड इन ऑडिट भी बाद में. अभी वी डोंट नो, अभी हमें मालूम नहीं है डिटेल में, तो विल कम टू इट लेटर. अभी जाता हूं टाइप्स ऑफ ऑडिट. नाउ टाइप्स ऑफ ऑडिट आर डिवाइडेड एज टू पार्ट्स. एक जो स्टैच्यूट के कारण रिक्वायर्ड है, एंड दूसरा वॉलंटरीली करवाते हैं. एक स्टैच्यूट के कारण रिक्वायर्ड बाय लॉ, उसको हम बोलते हैं स्टैच्यूट के कारण, दैट स्टैच्यूटरी ऑडिट. As required by Income Tax Act. Income Tax ने बोला turnover exceeds 1 crore या receipt exceed 50 lakh audit चाहिए. Companies Act, all companies has to mandatorily get the books audited. Cooperative Societies Act, all cooperative societies should get the books audited. Banking Regulation Act, all banks has to get the books mandatorily audited. ये सब statute है, don't think only income tax नहीं, बहुत सारे स्टैच्यूट है जिसने बोला ऑडिट कराओ. नाउ सर क्वेश्चन, अगर इट इज अ कंपनी हैविंग अ टर्नओवर मोर देन 1 crore, सर अगर इट इज अ कंपनी हैविंग अ टर्नओवर मोर देन 1 crore, तो सर उनका एक ऑडिट होगा, 2 ऑडिट होगा? अगर देयर इज अ कंपनी हैविंग अ टर्नओवर मोर देन 1 crore, क्या उनका एक ऑडिट होगा, 2 ऑडिट होगा? सर एज पर कंपनीज एक्ट तो मैंडेटरी ऑडिट है. एंड टर्नओवर एक्सीड्स 1 crore, इनकम टैक्स का भी ऑडिट चाहिए. As per Companies Act मैंडेटरी ऑडिट है. एंड टर्नओवर एक्सीड्स 1 crore, इनकम टैक्स का भी ऑडिट. सर 2 ऑडिट आएंगे, 1 2. तो इफ देर इज अ कंपनी जिसका टर्नओवर मोर देन 1 crore, दे विल हैव 2 ऑडिट्स, 1 एज पर कंपनीज एक्ट, 1 एज पर इनकम टैक्स. सर क्यों 2 बार? रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स अलग है. कंपनीज एक्ट के हिसाब से जब आप ऑडिट करो, क्या रिपोर्ट करना है, दैट्स डिफरेंट. इनकम टैक्स के हिसाब से आप ऑडिट करो, क्या रिपोर्ट करना है, दैट्स डिफरेंट. तो अगर देयर इज अ कंपनी हैविंग मोर देन 1 crore टर्नओवर, उनके 2 ऑडिट्स. आई होप यू आर क्लियर. तो जो भी ऑडिट रिक्वायर्ड बाय स्टैच्यूट, इट कैन बी कंपनीज एक्ट ने बोला, इट कैन बी इनकम टैक्स एक्ट ने बोला, इट कैन बी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, एनीथिंग, तो वो स्टैच्यूटरी ऑडिट. दूसरा वॉलंटरी. नाउ हम लोग कई बार कंपनी एक्ट वाले को स्टैच्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, टैक्स ऑडिट वाले को स्टैच्यूटरी नहीं बोलते, उसको टैक्स ऑडिट बोलते हैं. दोनों स्टैच्यूटरी है, दोनों एज पर स्टैच्यूट है. दिस इज कंपनी ऑडिट, दिस इज टैक्स ऑडिट. बेटर वर्ड इज ये कंपनी ऑडिट, ये टैक्स ऑडिट. हमारे सिलेबस में वी हैव अ फुल चैप्टर ऑन कंपनी ऑडिट, पूरा चैप्टर है कंपनी ऑडिट का. टैक्स ऑडिट का चैप्टर सीए फाइनल में.
सीए फाइनल में टैक्स ऑडिट का चैप्टर, कंपनीज एक्ट के हिसाब से कैसे ऑडिट होता है वो पूरा चैप्टर आएगा. विल स्टार्ट विद दैट आफ्टर दिस. कल के क्लास में विल स्टार्ट विद कंपनी ऑडिट. ओके, दूसरा वॉलंटरी. सर वॉलंटरी कोई क्यों ऑडिट करवाएगा? वॉलंटरी कोई क्यों ऑडिट करवाएगा? नाउ सिंपल एग्जांपल. इमेजिन देयर इज अ पार्टनरशिप फर्म. दो पार्टनर है, एक स्लीपिंग पार्टनर, एक वर्किंग पार्टनर. व्हाट इज स्लीपिंग पार्टनर? सर स्लीपिंग स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे सोते रहते हैं क्लास में. स्लीपिंग पार्टनर हु डजंट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजमेंट. वो सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है. नाउ इमेजिन देयर इज अ स्लीपिंग पार्टनर, देयर इज अ वर्किंग पार्टनर. उनका टर्नओवर एक्सीड नहीं हुआ 1 करोड़. पार्टनरशिप एक्ट ऑडिट के बारे में कुछ नहीं बोलता. पार्टनरशिप एक्ट डजंट से एनीथिंग अबाउट ऑडिट. टर्नओवर डजंट एक्सीड 1 करोड़, तो उनके लिए ऑडिट इज नॉट मैंडेटरी. बट स्लीपिंग पार्टनर वांट्स टू एंश्योर कि भैया वर्किंग पार्टनर कोई फ्रॉड नहीं कर रहा है, वो फेक खर्चा डाल के खुद तो पैसा नहीं ले जा रहा. 3 एम्प्लॉय है, बुक्स में 4 एम्प्लॉय दिखाएगा, खुद उसका पैसा ले जाएगा. इज इट ही डूइंग लाइक दैट? इसीलिए स्लीपिंग पार्टनर ने क्लॉज रखा. आई एम रेडी टू बी अ पार्टनर, आई एम रेडी टू गिव मनी, बट हम मैंडेटरी ऑडिट करवाएंगे. तो स्लीपिंग पार्टनर वांट्स टू एंश्योर वर्किंग पार्टनर इज नॉट डूइंग फ्रॉड. उसके लिए पार्टनरशिप डीड में दे पुट अ क्लॉज कि भाई मैंडेटरी हम ऑडिट करवाएंगे. नाउ स्टैट्यूट नहीं बोलता, आप वॉलंटरीली करवा रहे हो. दूसरा, बैंक की लोन चाहिए. बिफोर गिविंग एनी लोन बैंक विल आस्क फॉर योर फाइनेंशियल्स, एंड आप तो भाई कुछ भी बना के दे दोगे. प्रॉफिट कम था, डेटर्स टू सेल्स. ओके, सेल्स रिकॉर्ड किया, प्रॉफिट बढ़ गया, तो लायबिलिटी साइड पीएनएल बैलेंस बढ़ गया, सामने डेटर, एंड हाँ प्रॉफिट इंक्रीज्ड. यू मे कम आउट विद एनीथिंग. तो बैंक आप जो फाइनेंशियल्स दो उस पर रिलाई नहीं करेगी. वो बोलेगी भैया सीए सर्टिफाइड लाओ, ऑडिटेड लाओ. तो द थिंग इज, अगर आपको बैंक लोन चाहिए, इवन स्मॉलेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट, तो भी बैंक विल टेल यू गिव योर फाइनेंशियल्स व्हिच आर ऑडिटेड. तो बहुत सारे लोग ऑडिट करवाते हैं एज पर स्टैट्यूट नहीं. बैंक लोन है, स्लीपिंग पार्टनर, ही वांट्स टू बी एंश्योर्ड वर्किंग पार्टनर फ्रॉड नहीं करे. लेंडर, जो कई बार मैं आपको पैसा लोन में दूंगा, प्रोवाइडेड बुक्स ऑडिट कराओ. मुझे ये नहीं चाहिए मैंने पैसा दिया, फ्रॉड करके आप पैसा कहीं उड़ा ले गए. तो योर बुक शुड बी ऑडिटेड. वॉलंटरीली करवाते हैं कई बार. तो many times they do it voluntary. क्यों? For the purpose of getting a government grant, for the purpose of getting loan. and ये voluntary क्यों करवाते हैं? तो उसके लिए हमारे हैं advantages of audit. market as important. voluntary क्यों करवाते हैं? Now see, अगर आप देखो वो required as per statute and voluntary, मैंने कुछ ज्यादा मार्क किया ही नहीं है वहां पे, बिकॉज वो मैं खुद अपने आप से लिख पाऊंगा, उसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं था. बट हाँ, एडवांटेजेस में जाऊंगा, आई मार्क मेनी पॉइंट्स. तो इट्स नॉट नेसेसरी हर जगह सब चीज अंडरलाइन करो या हर जगह ओनली थोड़ा ही अंडरलाइन करो. डिपेंडिंग ऑन आपको लगे कितना अंडरलाइन करोगे, यू विल बी एबल टू हैव अ क्रक्स ऑफ एवरीथिंग, उतना अंडरलाइन करो. ओके, एडवांटेजेस. तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट? एक, हाँ, रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलता है. यू गेट अ रिलायबल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो ठीक है. बट दूसरे क्या एडवांटेजेस है? तो चीफ यूटिलिटी, चीफ इज मेन यूटिलिटीज, रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिलेंगे, दैट इज फाइन. अदर एडवांटेजेस आर, इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट. इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर नॉट एसोसिएटेड विद मैनेजमेंट. अभी एग्जाम्पल दिया, स्लीपिंग पार्टनर वांट्स टू बी एंश्योर्ड वर्किंग पार्टनर कोई फ्रॉड नहीं कर रहा. Sleeping partner is not associated with management. Same way companies में, who are the owners? Who are the owners of the company? बोलते रहना है, keep on speaking. घर पे बैठे हो, अकेले हो तो भी बोलो. Shareholders, sir, okay. But who manages the company? Sir, board of directors. Owners shareholder है, manage कर रहे board of director. तो shareholder wants to know BOD कोई fraud तो नहीं कर रहा. शेयर wants to know BOD कोई फ्रॉड नहीं कर रहा. दैट्स वाई उनके लिए भी मैंडेटरी ऑडिट है. कंपनीज में देयर इज अ मैंडेटरी ऑडिट. इट सेफगार्ड्स द इंटरेस्ट ऑफ पर्सन हु आर नॉट कनेक्टेड विथ मैनेजमेंट. इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉइज.
रेगुलर ऑडिट होगा ना, एम्प्लॉयज आर प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग फ्रॉड. मॉरल चेक, दिस प्रिवेंटेड. तो इट एक्ट्स एज अ प्रिवेंटिंग मेजर. एम्प्लॉयज आर प्रिवेंटेड, उनको लगता है ऑडिट में पकड़ा जाऊंगा मैं, तो दे डोंट डू द फ्रॉड्स. इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक, प्रिवेंटिव मेजर. हेल्पफुल इन सेटलिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस. हेल्पफुल इन सेटलिंग लायबिलिटी फॉर टैक्सेस, नेगोशिएटिंग लोन, परचेज कंसिडरेशन फॉर बिजनेस. अगर मैं किसी का बिजनेस खरीद रहा हूं, हाउ मच शुड आई पे फॉर दैट बिजनेस? उनके एसेट्स देखूंगा, लायबिलिटीज देखूंगा, उनका प्रॉफिटेबिलिटी देखूंगा. I'll see their assets, their liability, their profitability, फिर डिसाइड करूंगा हाउ मच शुड आई पे. तो ऑडिटेड अकाउंट्स आर यूजफुल. ऑडिटेड नहीं होंगे ना, डाउट आएगा. ऑडिटेड नहीं होंगे तो वो डाउट ही आएगा, ये फाइनेंशियल्स बराबर है कि नहीं. वो बिजनेस बेचना था इसलिए जानबूझ के अच्छा प्रॉफिट दिखा रहे होंगे ताकि अच्छा वैल्यूएशन मिले. इफ यू शो मोर प्रॉफिट्स यू विल गेट अ हायर वैल्यूएशन. तो अगर बुक्स आर ऑडिटेड ये इश्यूज नहीं आते. ट्रेड डिस्प्यूट्स फॉर हायर वेजेस या बोनस. कई बार बोनस इज लिंक्ड विथ प्रॉफिट का सम परसेंटेज वी गिव एज बोनस. नाउ इमेजिन, सपोज इस बार हमारा प्रॉफिट कम आया, बोनस कम दिया. अगर हमारा प्रॉफिट कम आया, वी गिव अ लेसर बोनस. एम्प्लॉयज को तो ऐसा ही लगेगा कि जानबूझ के हम कम प्रॉफिट दिखा रहे हैं. दे विल नॉट एक्सेप्ट प्रॉफिट कम आया. दे विल से सर जानबूझ के आप कम प्रॉफिट दिखा रहे हो ताकि कम बोनस देना पड़े. जानबूझ के कम प्रॉफिट दिखा रहे हो ताकि कम बोनस देना पड़े. नाउ दे डोंट अंडरस्टैंड रियली प्रॉफिट कम है. बट अगर अकाउंट्स ऑडिटेड दे कांट क्वेश्चन द प्रॉफिट. तो फिर वो प्रॉफिट पे क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते. ओके, हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग वेस्टेजेस एंड लॉसेस. नाउ ऑडिटर जब भी आता है, he checks your internal controls. अब ये नया वर्ड क्या है? इंटरनल कंट्रोल. सी, कोई भी कंपनी है, दे हैव सम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स. कोई भी कंपनी है, दे फॉलो सम पॉलिसीज एंड प्रोसीजर टू एंश्योर कि भाई एसेट्स आर सेफ गार्डेड, सारी चीजें, वेस्टेजेस कम हो रहे हैं, फाइनेंशियल्स प्रॉपरली बन रहे हैं, कोई फ्रॉड नहीं करे. इमेजिन सिंपल कोचिंग क्लास वाले पीपल, दे वांट टू नो कि भाई जो बंदे ने फीस नहीं पे की, द पर्सन हु हैज नॉट पेड फीस शुड नॉट कम एंड अटेंड द क्लास. तो क्या करते वो लोग? कोचिंग क्लास पीपल, दे वांट टू एंश्योर दोज हु हैव नॉट पेड फीस शुड नॉट अटेंड द क्लास. व्हाट डू दे डू? सो दे गिव अ आईडी कार्ड और वो आईडी कार्ड चेक करते हैं. तो जब भी आप एंटर होंगे आईडी कार्ड दिखाना होगा. तो दोज हु हैव नॉट पेड फीस, उनके पास आईडी कार्ड नहीं होगा. तो दैट्स अ इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी जो आप फॉलो कर रहे हो टू प्रिवेंट द फ्रॉड्स एंड एरर्स. तो डू वन थिंग, नीचे एट द एंड ऑफ द पेज थोड़ी जगह होगी, एट टॉप ऑफ द पेज जगह होगी. तो ये वर्ड इंटरनल कंट्रोल, वी जस्ट अंडरस्टैंड द वर्ड इंटरनल कंट्रोल क्या है. नीचे लिख लो. यू कैन जस्ट पुट अ स्टार हियर. ऊपर भी यहां पे स्टार दे दो तो आपको पता चले कौन सी चीज के लिए आप नीचे लिख रहे हो. कनेक्टर शुड बी प्रॉपरली गिवन. मालूम होना चाहिए कौन सी चीज के बारे में लिख रहे हो. पुट अ स्टार हियर एंड नीचे स्टार. राइट डाउन. Internal controls are policies and procedures. Internal controls are policies and procedures adopted by the management. कंपनी खुद एंटिटी अडॉप्ट करती है. तो internal controls are the policies and procedures adopted by the management which helps the management fulfill their responsibilities. Which helps the management fulfill their responsibilities or objectives. Which helps the management fulfill their, THEIR, THERE नहीं, THERE माने their, वहां पे नहीं, their खुद का, THEIR, fulfill their responsibilities or objectives. ओके, तो क्या है मैनेजमेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या है मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव? फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल्स? Who is responsible for preparing financial statements? Sir, management. Auditor will come and check.
हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फिनेंशियल्स प्रॉपरली बने, करेक्टली बने, टाइमली बने, उसके लिए दे सेट सम इंटरनल कंट्रोल कि जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है तुरंत रिकॉर्ड हो जाए, एवरी ट्रांजैक्शन के साथ उसका बिल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरह हो। दे हैव सम कंट्रोल्स। ओके, दूसरा, ओके, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग प्रॉपर अकाउंटिंग पॉलिसी, अप्लाइंग देम कंसिस्टेंटली। AS1 में पढ़ा है, accounting policy should be consistently followed. Change in accounting policy is allowed only under 3 cases. When change is required due to change in statute, change is required due to change in accounting standard, या change will lead to a more better presentation. So yes, who is responsible for selecting a proper accounting policy, applying them consistently? Accounting policy accounts बनाने के लिए who prepares account? Sir, management. तो अगेन वो मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स विच आर रीजनेबल? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग एस्टिमेट्स विच आर रीजनेबल? कई बार एस्टिमेट्स लेने पड़ते हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ फिक्स्ड एसेट, एस्टिमेट है। प्रोविजन कितना करूं, एस्टिमेट है। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक ए एस्टिमेट विच आर रीजनेबल? एस्टिमेट कैन नेवर बी करेक्ट, एस्टिमेट शुड बी रीजनेबल। पॉलिसी शुड बी अप्रोप्रिएट, estimate should be reasonable. Again, किसकी responsibility? Management की। Okay, who has to ensure business is conducted in a proper manner, orderly conduct of business? किसकी responsibility? Sir, management की। Who is responsible for complying with laws and regulation? Who is responsible for complying with laws and regulation? बहुत सारे laws and regulation इंडिया में है, किसकी responsibility है कि वो comply करे? Management. We will come and check क्या आपने comply किए कि नहीं। Complying with laws and regulation उनकी responsibility. Who is responsible to safeguard the asset? वो कस्टमर चोरी करके नहीं चला जा रहा है, कस्टमर केम चोरी करके चला गया। Who has to ensure customer doesn't steal the things? Sir, management. ऑडिटर रोज रोज आपकी दुकान में नहीं आएगा, he is not going to come daily to your shop. तो अगेन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए आप सीसीटीवी कैमरा लगाते हो। सीसीटीवी कैमरा भी आपके इंटरनल कंट्रोल्स, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट, सेफ गार्डिंग एसेट। सेम वे प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर इज ऑल्सो ऑफ मैनेजमेंट। तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है मैनेजमेंट की। इंटरनल कंट्रोल क्या है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर अडॉप्टेड बाय द मैनेजमेंट विच विल हेल्प मैनेजमेंट फुलफिल देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ऑब्जेक्टिव। ये वर्ड डिटेल में बाद में आएगा, ये वर्ड डिटेल में बाद में आएगा। तो उन्होंने पॉलिसीज प्रोसीजर लगाए टू हैव अ ऑर्डरली कंडक्ट ऑफ बिजनेस, सेफ गार्डिंग एसेट, प्रिवेंशन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर, कोई चोरी नहीं करे, सीसीटीवी डाले, वो सब इंटरनल कंट्रोल्स। ओके, तो जैसे भी आप ऑडिटर आता है, जैसे भी ऑडिटर आएगा, ही विल चेक योर इंटरनल कंट्रोल्स ऑल्सो। तो विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कहां पे कंट्रोल्स वीक है, he will be able to identify कहां पे controls weak है। तो helps in detection of wastages and controls, मतलब wastages and losses, वो controls check करेगा and will tell you यहाँ पे controls are weak, you have to improve the controls. He will ascertain whether the books which are required by law are kept, तो whether necessary books of accounts have been kept। तो law में Companies Act, कंपनीज एक्ट में बोला है बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी केप्ट ऑन अक्रूवल बेसिस, डबल एंट्री सिस्टम। बुक्स ऑफ अकाउंट शुड बी केप्ट ऑन अक्रूवल बेसिस, डबल एंट्री सिस्टम। ऑडिटर विल कम एंड चेक कि आपने बराबर बुक्स रखे हैं कि नहीं। ही विल रिव्यू द एग्जिस्टेंस एंड ऑपरेशंस ऑफ वेरियस कंट्रोल्स। कंट्रोल्स इज नथिंग बट इंटरनल कंट्रोल, कंट्रोल्स इज नथिंग बट द इंटरनल कंट्रोल, जो पॉलिसीज प्रोसीजर्स है आपकी। आई टेल यू, चलो एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप बिग बाजार जाते हो, बिग बाजार में दे हैव फूड आइटम्स, दे हैव क्लोथिंग, एपरल्स। तो बिग बाजार में आप गए, आपने टी शर्ट लिया, व्हाट इज द कंट्रोल दे हैव? कि आप टी शर्ट्स विदाउट बिलिंग बाहर नहीं लेके आ जाओ। यू डोंट टेक अवे द टी शर्ट्स विदाउट बिलिंग। क्या कंट्रोल्स है? क्या कंट्रोल है? 2 कंट्रोल है। एक, हर एक टी शर्ट में वो मैग्नेटिक थिंग अटैच करिए। अगर आप विदाउट बिलिंग लेके जाओगे, सेंसर्स लगे होते हैं साइड में, सेंसर्स एग्जिट पे, सायरन बजेगा। दूसरा, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, वो आपका बिल भी चेक करता है। तो 2 कंट्रोल्स है। एक, विदाउट बिलिंग चले गए, वो सेंसर्स लगे, सायरन बजेगा, वो मैग्नेटिक थिंग अटैच किया था टी शर्ट में नीचे। एंड सेकेंड, सिक्योरिटी गार्ड इज देयर बेसिकली चेकिंग योर बिल। बिल में टी शर्ट नहीं है,
तो we auditor will also check your controls. Are the controls working properly or not? अगर work नहीं करे, we will guide you कैसे control को strengthen करो. हाँ, जो main auditor, जो statutory auditor होता है, वो control को उतना detail में check नहीं करता, but there's an internal auditor. Internal auditor is appointed by the management. वो management appoint करते हैं खुद के लिए. तो they check control in much more detail. तो इंटरनल ऑडिट होता है, इंडिपेंडेंट ऑडिट होता है, एक्सटर्नल ऑडिट, वो सब विल लर्न इन डिटेल लेटर. अभी स्टार्ट किया है, सब्जेक्ट का नाम, क्यों ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ ऑडिट वही समझ रहे हैं. देन इन केस ऑफ डेथ ऑफ पार्टनर, डेथ या रिटायरमेंट, कोई पार्टनर डेथ हुआ, रिटायर हुआ, एडमिशन. नाउ न्यू पार्टनर एडमिशन के टाइम गुडविल, या उसको सेट बिजनेस में एंट्री मिल रही है, he is getting entry into a set business, we charge goodwill from him. Goodwill value कैसे होती है? Tell me, how do we value goodwill? Accounts में पढ़ा है, valuation of goodwill chapter. कैसे होता है valuation of goodwill? Sir, average profit method, super profit method. Okay, average profit, we take average of last few years के profit. अगर accounts audited नहीं है, they will question profit शायद गलत होंगे. They don't trust you. Same way partner retires, उसका capital, उसका पैसा वापस करना है, एक्सपायर हो गया, उसका पैसा लीगल एग्जीक्यूटर को देना है. अगर अकाउंट्स आर ऑडिटेड, दे विल नॉट क्वेश्चन द कैपिटल्स. सेम वे कई बार गवर्नमेंट टेल्स यू कि भैया आप ऑडिटेड अकाउंट्स लेके आओ इफ यू वांट टू गेट अ लाइसेंस फॉर समथिंग, या कोई ग्रांट चाहिए, इफ यू वांट अ गवर्नमेंट असिस्टेंस और ग्रांट, तो अगेन आपको ऑडिटेड अकाउंट्स चाहिए. फॉर एग्जाम्पल केरला में देयर आर फ्लड्स. केरला में फ्लड्स थे और बहुत सारा लॉसेस हुआ दुकानदारों को. तो गवर्नमेंट केम आउट, अगर आपको लॉस हुआ फ्लड में, वी विल गिव अ कंपेंसेशन मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपी. अब जितना भी आपको लॉस हुआ, यू हैव टू गेट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम सीए. इतना लॉस हुआ है, उसके बेसिस पे गवर्नमेंट इज गिविंग यू द कंपेंसेशन. तो ऑडिटेड फाइनेंशियल्स है, तो उसके बेसिस पे सीए सर्टिफाइड है, उसके बेस पे द कंपेंसेशन और ग्रांट इज गिवन टू यू मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीस. तो ये सारे एडवांटेजेस, बहुत सारे एडवांटेज आर गिवन. इट एंश्योर्स कि भाई अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन अ टाइमली बेसिस. इट एक्ट्स एज अ मॉरल चेक ऑन एम्प्लॉय कोई फ्रॉड नहीं करेंगे, बिकॉज प्लस ऑडिट हो रहा है, वो सोचेंगे पकड़ा जाऊंगा ऑडिट में. फिर those who are not associated with management, उनका interest is safeguarded. It safeguards the interest of those who are not in management. फिर tax liabilities, tax dispute आए तो audited financials better है. बैंक लोन लेना है, audited financials better है. Government grant, audited financials better है. Controls improve होंगे because auditor will check the internal controls. तो controls improve होंगे. Wage dispute चल रहा है, they will not question the profit अगर हमारे accounts are audited. ये था एडवांटेजेस ऑफ ऑडिट. नाउ दूसरी चीजें, ये चैप्टर की दूसरी चीजें वी विल बी डूइंग इट लेटर. तो ये एक इंट्रोडक्टरी सेशन था. इन द इंट्रोडक्टरी सेशन वी अंडरस्टूड कि भाई हम लोग कैसे जाएंगे. अब यहाँ इंडेक्स आना बाकी है. वी कम टू इंडेक्स. चलो एक बार इंडेक्स पे आ जाते हैं. तो वी अंडरस्टूड द वर्ड ऑडिट, मीनिंग, उसके टाइप्स, उसके ऑब्जेक्टिव, एडवांटेजेस. नाउ ये इंडेक्स 2 पार्ट्स हैं. देयर आर 2 पार्ट. पार्ट 1 आपका मेन बुक अराउंड 380 पेजेस. पार्ट 2 इज ओनली द ऑब्जेक्टिव्स. पार्ट 1 खत्म हो, कोई टॉपिक पार्ट 1 में किया, फिर ही ऑब्जेक्टिव देखो. डोंट डू ऑब्जेक्टिव बिफोर. बेटर इज फिनिश बुक 1 देन यू गो टू बुक 2. ऑब्जेक्टिव इज जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड आपके सिलेबस में 44 मार्क्स ऑफ ऑब्जेक्टिव. सर 44? हाँ, 30 मार्क्स एमसीक्यू, 14 मार्क्स ट्रू फॉल्स. 30 मार्क्स ऑफ एमसीक्यू, 14 मार्क ऑफ ट्रू फॉल्स आपके एग्जाम में आता है. नाउ ये जो चैप्टर्स का सीक्वेंस है, दिस इज एज पर आईसीआई. ये इंडेक्स इज एज पर आईसीएआई. तो दिस इज एज पर आईसीआई बुक. हमारी बुक में मैंने सेम सीक्वेंस लिया है, बट बहुत सारे चैप्टर आर लिंक्ड टू सम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. चैप्टर 14 इज ऑन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. चैप्टर 14 इज ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड. बहुत चैप्टर लिंक्ड है स्टैंडर्ड के साथ. तो मैंने क्या किया, वो चैप्टर का कंटेंट स्टैंडर्ड के साथ दे दिया है.
वो चैप्टर का कंटेंट आई गिवन विद स्टैंडर्ड्स. अगर आप चैप्टर 2 ओपन करोगे ना, तो चैप्टर 2 में लिखा होगा रिफर एसे 300. तो बहुत सारे चैप्टर्स आर लिंक्ड विद स्टैंडर्ड. वी हैव कवर्ड इट विथ स्टैंडर्ड्स ओनली. ओके, तो ये फर्स्ट चैप्टर में देयर इज समथिंग अबाउट एसे 200, एसे 210 एंड एसे 220. तो एसे 200, 210, 220 ये चीजें लिंक्ड है चैप्टर नंबर 1. तो चैप्टर नंबर 1 में लास्ट पेज में देखो, चैप्टर नंबर 1 लास्ट पेज में लिखा होगा अदर कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर. Other content of this chapter is covered with essay 200, 210, 220. Now, audit strategy, audit planning. Audit strategy, audit planning, ये है covered in essay 200, essay 300. This is covered in essay 300. तो हमारी बुक में I have given a same index. But ये पेज पे जाओगे, ये पेज 2.1 पे you go, they will say the content is covered in essay 300. Audit documentation and audit evidence. This is covered in documentation के लिए essay 230, evidence के लिए 500, 501, वो सारे बहुत सारे. तो full 500 series, full 500 की series. Risk assessment and internal control. There are some risk in business. Frauds, errors कैसे होते, उसके लिए मैनेजमेंट पुट्स कंट्रोल. कोई चोरी ना करे उसके लिए मैनेजमेंट ने सीसीटीवी डाला. Risk assessment and internal controls. We have essay 315 for it, where we identify the areas, where there can be a fraud and error. Risky area identify करते हैं जहां पे there can be a fraud and error. You can just write down this essay numbers. fraud के लिए we have essay 240. तो बहुत सारे चैप्टर essay के साथ लिंक्ड है. हमारी बुक में एवरीथिंग गिवन इन आईसीआई आई हैव कवर्ड इट. तो चैप्टर में जो था वो कवर्ड है, बट वो एसे के साथ मैंने दिया है. इट्स बेटर लिंक्ड, दैट्स इट. चैप्टर नंबर 7 इज ऑडिट सैम्पलिंग. ऑडिट सैम्पलिंग के लिए SA 530. ऑडिट सैम्पलिंग के लिए SA 530. एनालिटिकल प्रोसीजर्स इज SA 520. Analytical procedures is essay 520. और audit report, this is 700 series, पूरा 700 series. SA actually वहां पे 700 है, 701 है, 705 है, 706 है एंड 710 है. तो फुल 700 series audit report. ओके, तो बहुत सारे चैप्टर लिंक्ड है स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के साथ. वो बहुत सारे चैप्टर कवर्ड भी है स्टैंडर्ड्स में. इफ यू विल गो टू दैट चैप्टर, लिखा होगा रेफर दिस स्टैंडर्ड. नाउ पे अटेंशन. वेटेज, कौन से चैप्टर्स का कितना वेटेज, विच चैप्टर्स है हाउ मच वेटेज. हम लोग स्टार्ट करने वाले कंपनी ऑडिट से. कंपनी ऑडिट का वेटेज अप्रोक्सीमेटली is 15 to 20 marks. उसके नीचे लिख रहा हूं, it is 15 to 20 marks. फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे कंपनी ऑडिट से 15 to 20 marks. फिर आप नीचे जाओ चैप्टर 14 ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड. इसका वेटेज है अराउंड 40 to 45 marks. Around 45 marks is the weightage of auditing standard. सर लिखना इसके साथ वो ऊपर वाले सारे चैप्टर लिंक्ड, इसके साथ ऊपर वाले सारे चैप्टर लिंक्ड, वो आगे सब. तो ऑल दैट ऊपर वाले चैप्टर्स आर लिंक्ड, दे आर कवर्ड विथ इट. तो ये 45 मार्क्स, ये 20 मार्क्स हुआ 65. ओके, ऑडिट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटिटी अप्रोक्सीमेटली वेटेज 8 मार्क्स. ये अप्रोक्सीमेट वेटेज है, डोंट स्टिक टू इट, इतना आना ही चाहिए नहीं. अप्रोक्सीमेट वेटेज, एवरेज 8 मार्क्स. ऑडिट ऑफ बैंक 5 मार्क्स. एक क्वेश्चन आता है जनरली, ऑडिट ऑफ बैंक इज 5 मार्क्स. ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम, चैप्टर 9. ऑडिट ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 12 to 15 marks. This is 12 to 15 marks. इसका वेटेज. एंड ऑटोमेटेड एनवायरमेंट 5 marks.
automated environment, chapter number 6 is 5 marks. तो ये जस्ट वेटेज है, ये जस्ट वेटेज है, ये 5 marks. 12 to 15 marks is chapter number 9. Chapter number 10 is 15 to 20 marks. Chapter 12 is 5 marks. Different types of entity is 8 marks, and auditing standard approximately 50 marks. Approximately 50 marks. Now, इसके साथ वो सारे chapters are linked. इसके साथ वो सारे chapters are linked. Now, our sequence, what will be our sequence? We'll start with company audit. Company audit, फिर हम करेंगे chapter 14, auditing and assurance standard. Company audit, auditing assurance standard, फिर जो भी chapter related to standards, फिर जो भी chapter है related to standard, फिर audit of different items, audit of different item, chapter number 9, फिर chapter number 13, different types of entity, फिर जाएंगे banks में, and last में automated environment. तो हमारा sequence will be company audit, auditing standard, standards के related के chapters, audit of different items, then audit of different types of entity, फिर जाएंगे audit of bank and automated environment. आज के लिए we keep it up till here, and now generally I'll share some of the experience of mine या मेरे friends के या कोई students के. बहुत सारे students problem लेके आते हैं, तो उनके problems क्या थे, how they resolved it. I'll share some experiences. Plus I'll also say some motivational quotes. This is the first day of the class. I tell you one quote which is kind of most favorite of mine. This is a sentence given in Srimad Bhagavad Gita. Srimad Bhagavad Gita mein this sentence is given. If you don't fight for what you want, if you don't fight for what you want, don't cry for what you lost. Now see, to crack your intermediate exam in first attempt, you need to fight for it. If you don't fight for what you want, don't cry for what you lost. अगर मेहनत नहीं करो, लास्ट में रिजल्ट नेगेटिव, डोंट सिट एंड क्राई. अभी कंटिन्यू है. Nothing comes by luck, everything comes by work, even your luck has to work. Nothing comes by luck. luck से पास होते नहीं. Everything comes by work, even your luck has to work. हाँ, आज नसीब भी काम करना चाहिए ना. मेरा नसीब ही फूटा हुआ है, तो नसीब, your luck also has to work. So what does it say? If you don't fight for what you want, don't cry for what you lost. Nothing comes by luck, everything comes by work, even your luck has to work. Make sure you work that much hard that nobody can stop you from achieving success. Okay, see you all tomorrow. Tata, bye bye, take care. कल start करेंगे company audit.